let's we move further. Before it, look what we have done. Reproductive health, healthy reproductive organs with normal function. That is our normal understanding. But in broader perspective, we are introduced to two more topic. Among it, what are emotional and social aspects of the reproduction? Emotional, social aspect जो भी है who उन्हें क्या कराएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज अ फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल सोशल दैट ऑल थिंग therefore society with the people having physical and functional normal reproductive organs उनके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन होने चाहिए नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शन होना चाहिए सबके साथ में among them in all sex related aspects देखो नॉर्मल सोशल बिहेवियर दैट वी कैन कंसीडर दैट व्हेन यू गो टू द बैंक और द एनी अदर offices if the officer is the lady and if office suppose other officer is a gents whatever the behavior of customer is totally changed there should be no what should be there either it is male or the female it doesn't matter we should respect that designation. But we are not considering designation, education, and his qualification and that whole thing. We are oh, ये तो lady है. Behavior and interaction among them in these sex related aspects. Why so this is significant as well as what are the methods? So look, take the topic for point 1. India was among the first countries in the world to initiate the action plans and programs at the national level. India was the first country to attain the total reproductive health as a social goal. सोशल गोल में सबसे पहले वर्क करने वाली जो कंट्रीज है उसमें भी वेरी फर्स्ट इज द इंडिया बट हार्ड लक दैट आवर कंट्री वाज द फर्स्ट अमंग द ऑल द कंट्रीज बट वी आर द फार बिहाइंड. This program was called as a family planning. Highlight करो family planning. And बाजू the question mark रखो and note it 2 marks. What is the family planning? Give the brief note about it. It was initiated in 1951. Highlight करो 1951. This was as in the match column A and column B. And when it periodically assessed over the past decades. और 5 decade में से उसको बहुत स्टडी करा गया और उसको इम्प्रूव भी करा गया. एवरी 10 ईयर उसका स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द देयर लिमिटेशंस, व्हाट शुड नाउ बी इम्प्रूव, व्हाट शुड डू टू हैव द मोर इफेक्टिव रिजल्ट. इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर reproductive related areas are now currently in operation under the popular name. अब बोलो वही चीज का पॉपुलर नेम क्या हो गया है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH. हाईलाइट करो RCH शॉर्ट फॉर्म. दिस वाज आस्क्ड in one mark question give the full form of the RCH. अब इसके बाद में उसका इम्पोर्टेंस दिया है कि RCH का इम्पोर्टेंस क्या है. क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी. बोलो काय के लिए उसका क्या एस्पेक्ट है. प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, फैसिलिटी प्रोवाइड करना and support for building up a reproductive healthy society and major tasks under this the program. यानी क्या to move in the deep remote area इन जंगल एरिया में जो विलेजेस है वहाँ पे जाना, वहाँ पे लोगों को to convince the people, explain the people that these are also normal sex organs are also like the normal organs. They have their own function, how they function, what are the limitations, if there is any problem, how to cure it, what should be available facility, वो सब. With the help of audio visual, means TV, radio, etc., and print media, newspapers, government and non-governmental agency, government as well as non-governmental agency, means those who are the field worker, they are giving their own help to the societies. Those taken various steps to create awareness among the people about reproductive related aspects. बोलो उसमें कौन पेरेंट्स भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं. मैरिज के टाइम पे वो ग्रूम को उसको समझा सकते हैं क्या है कैसा है. अगर वो नहीं कर सकते अदर रिलेटिव्स
टीचर्स कैन ऑल्सो गाइड्स, फ्रेंड्स, एजुकेटेड फ्रेंड्स ऐसे चालू फ्रेंड नहीं, ऑल्सो हैव द मेजर रोल इन द डिसेमिनेशन ऑफ अबाउट इंफॉर्मेशन। जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत थिंकिंग आ गया है, उसके लिए उसको गाइड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मैरिज वाइफ इज नॉट योर गुलाम, यू आर नॉट योर सर्वेंट, ही शी इज योर लाइफ पार्टनर। उसके साथ कैसा बिहेव करना, क्या करना, ये सब दिस इज ऑल्सो द अमॉन्ग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Introduction of the sex education in school should be also encouraged to provide the right information to the young ones so as discourage the children from believing in myths and having the misconception about sex related aspects. Importance of the sex related education means boys and girls are same, their heart functioning same, their digestive systems are same, all the systems are same, only reproductive organs they are the difference. Looking to their age, they have to give the some information, और वो information कह सकते हैं कि they are also, ऐसा तो नहीं है कि लड़की पुलिस में भर्ती नहीं हो सकती, आर्मी में नहीं जा सकती, पायलट नहीं बन सकती, these all are the aspects of the schools. So young have the major provide the information to the young ones who discourage the children from believing myths and having the misconceptions about sex related aspects. Proper information about reproductive organs, adolescence related changes, safe and hygienic sexual practices, sexual transmitted diseases, sex organs से जो disease spread होते हैं, एड्स एक्सेट्रा, ये सब भी उनको स्कूल में बताना चाहिए। स्कूल में उसको उसका एक इंफॉर्मेशन का होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। would help people, especially those in the adolescent age group, lead to the reproductively healthy life. तो क्या होता है, आगे अपने जाके उसको कोई मिस गाइडेंस से नहीं होता है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ में रहता है। Educating people, especially fertile couples, those in marriageable age group, about the available birth control option. बोलो marriageable birth group में जो है उनको क्या, about the controlling birth control option, मैरिज होने के बाद में सपोज दे आर द डॉक्टर, कपल इज अ डॉक्टर और मेडिको से, तो स्टिल दे हैव टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिस, दे हैव टू एस्टैब्लिश देयर प्रैक्टिस, सो दे डू नॉट वांट देयर चाइल्ड नहीं है चाहिए तो क्या आएगा, उसके लिए क्या ऑप्शन है, वंस दे एस्टैब्लिश देन आफ्टरवर्ड, जब प्रेग्नेंट हो द केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, अगर जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई एमबी है, ऐसा कपल है, तो जहाँ तक वो एस्टैब्लिश नहीं होते, उनके नॉर्मल लाइफ में नहीं आते, वहाँ तक उनको चाइल्ड नहीं चाहिए, तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल, चलो उसके बाद में चाइल्ड चाहिए, तो जब वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए क्या केयर लेनी है, जो स्टेप बाय स्टेप है देखो। देन आफ्टर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, जब डिलीवरी हो गई तो मदर को कितना क्या केयर करना है, चाइल्ड का क्या करना है, वो उसके बाद में जब वो चाइल्ड बड़ा हो गया तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसको चाइल्ड की डिलीवरी हो गई तो चाइल्ड को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग, वी हैव स्टडीड इन दैट क्लोस्ट्रम देयर आर सम एंटीबॉडीज व्हिच आर नेसेसरी। चलो वो हो जाने के बाद में अपने क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, जब स्कूल में जाएगा तो ये सब में नहीं कि मेल चाइल्ड है तो उसको अच्छी फैसिलिटीज है, फीमेल है तो उसको इतनी अच्छी नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। would addresses the importance bringing up the socially conscious and healthy families at desirable size. पूरी सोसाइटी की वो हेल्दी फैमिली बनेगी। अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें उनको ये भी हमें बताना पड़ेगा कि अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो क्या हुआ। लोग अवर इंडिया हैज such a vast industry and everything and research and this and that, but we cannot have any result. We do not have any result. Why? Our population is so high कि इतना सब करने के बाद भी सबको सब कुछ मिलता नहीं है। सोशल एविडेंस लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, वही अभी हमने बोला था कि बैंक में गए ना, जो मैनेजर लेडी है तो उसके साथ वो कस्टमर अच्छा बिहेव नहीं करते, पुलिस ऑफिसर लेडी है तो क्या होगा, लॉकडाउन में उसको ध्यान ही नहीं देते, बड़े जेंट्स है तो उसको देख के सब भाग जाएंगे। नीड टू क्रिएट एनेबल पीपल टू थिंक
and take up the necessary steps to prevent them and thereby build up a social responsible and healthy society. चलो ऐसा जो होता है उसमें हमने क्या सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन ऑफ द वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेंड अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. Strong infrastructure facility. What is the meaning of the strong infrastructure facility? दूर दूर गांव में वहाँ भी इतने हॉस्पिटल्स एंड अदर अवेलेबिलिटी. प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, डॉक्टर्स भी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स शुड बी देयर. एंड मटेरियल सपोर्ट, उसके साथ में मेडिसिन है जो भी, फिर ऑपरेशन थिएटर है, सब दूसरा भी सपोर्ट रहना चाहिए. These are essential to provide medical assistance and care of the people to reproductive related problems like the pregnancy के प्रॉब्लम. वह कैसे अरे कोई को चाइल्ड नहीं है, कोई अपने कपल को, तो इन आवर सोसाइटी वी आर ब्लेमिंग ओनली टू द लेडी. नो, दे शुड बी प्रॉब्लम इन द जेंट्स आल्सो. The care of the people who reproductive problems like pregnancy. चलो डिलीवरी टाइम पे मेनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वो जो क्या है वो STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं और कैसे उसको स्टॉप करना है. वो एबॉर्शन, इफ अनवांटेड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हो गया तो उसको एबॉर्शन कब कैसे करना है, और वो भी जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे. कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी, ये जो हम प्रीवियस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं वो सब इंफॉर्मेशन उनको होनी चाहिए. Implantation of the better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. और वो टाइम टू टाइम ये इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, न्यू रिसर्च होना चाहिए और वो सब पब्लिक तक जाना चाहिए. Statutory ban on the amniocentesis for the sex determination to legally check up increasing the mens of the female फोर्टिसाइड्स मीन्स जो फिटस डेवलप होता है उसके सराउंडिंग जो लिक्विड होता है उसको एम्नियोटोनिक लिक्विड कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं. इफ वी टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इट एंड वी एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप द सेक्स क्रोमोसोम XX and XY can be identified. Basically this technique was developed to identify the either coming child is having any क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज. वो तुमके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, आगे के चैप्टर में वो है. ऐसी कोई इनहेरिटेंस डिजीज उसमें आ रही है कि कुछ आ रहा है उसके लिए, बट उसको स्टडी नहीं करते, वो आइडेंटिफाई करते कि आने वाला चाइल्ड मेल है कि फीमेल है. अगर फीमेल है तो एबॉर्शन कर दो. दैट इज मिसयूज ऑफ दिस टेक्निक इन आवर इंडिया. Statutory ban on amniocentesis for the sex determination to legally check up the increasing menace of the female foeticid, massive child immunization etc. ये हमारे यहाँ पे बहुत हुआ, तो उसको ले क्या कराएगा गवर्नमेंट, उसको बैन कर दिया है. Are some program that merit mention in these concerns. In connection in amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus taken to analyze the fetal cell and dissolved substance. This procedure is used to the fetal cells and dissolved substance. This procedure is used to identify the certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. Determine the survivability of the fetus also. लेकिन यहाँ पे क्या करें, उसका मिसयूज कराए. समझ में आ रहा है. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by government and non-government agencies to find out the new methods or to improve upon the existing ones. ये जो सब मेथड है वो पीपल तक ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसी सब कुछ रिसर्च चलता है. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for the females, was developed by the scientist Central Drug Research Institute CDRI. हाईलाइट करो CDRI. Where is it in Lucknow in India. जब ये अपने ये टेबलेट है, ये अपने टेबलेट का जो रेगुलरली वो लेडी लेती है ये, तो उसको इम्प्लांटेशन नहीं होता है, आगे आएगा. So this is the developing in India and this is the spread from India to all over the world. And now all over the world they are using this. Better awareness about the sex related matters increase number of medically assisted delivery and better postnatal care leading and decrease the maternal and infant mortality and death rate.
बोलो ये सब होने से क्या हुआ, इंक्रीज जो हो रहा था मोर्टालिटी, डेथ रेट है, ये सब उनका प्रॉब्लम है, वो सब क्या हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बोलो क्या हुआ उससे, समझ में आया सब कुछ, तो उससे स्मॉल फैमिलीज होने लगी। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी समझ में आया, तो उसका क्योर हुआ, तो हमारी सोसाइटी अच्छी बनी। एंड ओवरऑल इंक्रीज द मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे किसी कोई कपल को चाइल्ड नहीं है तो वो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, एक्सेट्रा। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थी ऑफ द सोसाइटी, और इस सब में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनी।